शेयर्स में ट्रेड करना है, मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड किया होगा, स्टॉक कोई सर्च किया होगा और फिर इतने सारे टर्म्स देखकर इंटिमिडेट होकर डर के ऐप ही डिलीट कर दिया होगा, है ना। आई नो हम सब ने किया ये, मैंने भी किया है, क्योंकि ये टर्म्स इतने कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं ना कि देख के ही होश उड़ जाए। बट इट्स ओके, वी ऑल लर्न फ्रॉम समवेयर एंड टुडे आपकी बारी है। डोंट ट्रस्ट मी, वॉच द वीडियो। Hi guys and welcome back to my channel. My name is Tanishka and I hope you all are doing good. Today we are going to talk about how to read the data of a particular share on the money control app. So बहुत सारे trading platforms available होते हैं. For example, we have HDFC, we have Upstocks, we have Money Control, we have Zerodha. बहुत सारे होते हैं. लेकिन Money Control per se they say is the most basic app जहाँ पे आप हर share का actual details ऐसे भी देख सकते हो. Even if you are not trading, you come to know a lot about the market with its basic interface. खैर वो basic interface तो हम बाद में देखेंगे. अभी हम पहले देखेंगे कि how do we read about a particular share. जब हम कोई share search कर लेते हैं जो इतना सारा data आता है, what does that data mean? Let's find out today. So first, a quick 1 or 2 minutes tour of how to actually reach that particular share, right? So सबसे पहले you will download the Money Control app. Now I am using iOS, but I'm pretty sure कि Google Store पे भी available है. So download the Money Control app, फिर उस ऐप को खोलिए. Step number 1, वो ऐप कुछ ऐसा दिखेगा. Okay? Now, pro tip, even if you do not create an account, you can get all the data about a particular stock, or at least the data that you will need about a particular stock. You can read about newsletters and things, etc. on this app. Frankly, I do not use Money Control for trading, इसलिए मैंने account नहीं बनाया हुआ है. But if you want, you can also use it for trading. But frankly, I prefer to use it just to get information and to know कि stocks का क्या चल रहा है, जो आपको बाकी platforms में भी पता चलेगा. But this is just more precise. Anyway, ऐप खोल दिया, ऐसा इंटरफेस आ गया. फिर हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे. And today I am taking the example of Hindustan Unilever. So I will type HUL, which is Hindustan Unilever का short form. HUL खोल दिया और ऐसा एक इंटरफेस आएगा. और इस इंटरफेस में इतने सारे नंबर्स हैं कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर ये क्या कहना चाहता है. बट अब हम समझ जाएंगे. So disclaimer, I am making this video on 21st March in the evening time. So whatever data we are seeing is based on that. Now don't worry, हम जल्दी इस पूरे डेटा को इंटरप्रेट करेंगे. आप बोलोगे हैं ये देख के मैं डर गया था. So simple. Let's not waste time. First things first, the number that I've highlighted in the yellow, this is the current market price. That is the price at which the share is currently trading. अभी का अभी ये share हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट में इतने पे मिल रहा है. I have done a detailed video on what exactly is market price last week. I will link it in the description if you haven't seen it. प्लीज जाके देखो, cause वो नहीं समझ आएगा तो ये वीडियो भी नहीं समझ आएगा. ठीक है, तो वो होगा करंट मार्केट प्राइस. बिल्कुल उसके नीचे हम देखेंगे there is a red arrow pointing downwards with the number saying 48.60 ब्रैकेट में -1.94%. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब at this point, like while I'm making this video, हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 48.60 रुपीज कम है as compared to its previous prices. Right, as compared to the previous price it was trading, say the previous day, the price is going down. Red always indicates a downward fall and green indicates an upward increase in the stock market. Plus इसमें तो arrow भी है तो आपको पता चल गया. Plus जो amount है मतलब उतने amount से कम है, 48.60 रुपीज से कम है शेयर. अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो -1.94% मतलब -1.94% से ये शेयर कम ट्रेड कर रहा है as compared to yesterday's price. Okay, so the price is going down. नेक्स्ट टर्म वी सी, बिल्कुल उस रेड नंबर के नीचे आता है वॉल्यूम. वॉल्यूम में क्या लिखा है इन्होंने? 1,595,161. वॉल्यूम मतलब कितने शेयर्स ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर आर करंटली ट्रेडिंग इन द मार्केट. सो फन फैक्ट, जब मैंने ऐसे कभी बचपन में सुना था शेयर्स के बारे में तो मुझको लगा था कि हर कंपनी के अनलिमिटेड शेयर्स होते हैं, ऐसे थोड़ी कि वो लिमिट करती होगी. नहीं, अपेरेंटली दे सेट आउट अ सर्टेन लिमिट. इतने ही शेयर्स आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो. जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा मतलब कंपनी ने उतने ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल रखे हैं फॉर पीपल टू ट्रेड, दैट इज़ बाय एंड सेल. और जितने ज़्यादा शेयर्स रहेंगे उतना ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगा. लिक्विडिटी मीन्स द ईज एट विच यू कैन बाय एंड शेयर अ सेल एट एन अप्रोप्रिएट प्राइस. इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि अगर आपको कुछ खरीदने जाना है मार्केट में और आपको पता है कि वो आपको ईजिली हर जगह पे बहुत सारे शॉप्स में मिल जाएंगे, तो यू आर वेरी काम, बिकॉज आपको पता है कि अगर एक शॉप आपको प्राइस नहीं देगा तो आप दूसरे शॉप से ले लोगे. प्लस आपको पता है कि आपको शॉर्ट मिलेगा. यू डोंट रियली स्ट्रेस अबाउट कि मेरे को शायद प्रोडक्ट नहीं मिलेगा.
ऑन द कॉन्ट्री अगर आप कोई स्केर्स प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, कोई रेयर प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, आपको पता है इतना ईजिली नहीं मिलेगा, तो यू विल हैव टू मे बी पे अ हायर प्राइस, यू विल नॉट गेट इट दैट ईजिली. आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा. सो जस्ट थिंक ऑफ लिक्विडिटी एज दैट. The higher the number of shares, that is the higher the volume, that means the higher the number of shares, that means the more easy it is that you will be able to buy and sell at an appropriate price. आपको कोई ज़्यादा लूट नहीं पाएगा इस बात के लिए. Also a lot of people even term number of shares basis how big the company is, which obviously HUL is. Clearly 1 million shares are trading. Yes, so that is that point. फिर उसके नीचे हम जाते हैं तो हमें दिखता है रेड चार्ट. वो चार्ट हम अभी नहीं पढ़ेंगे, जस्ट अंडरस्टैंड रेड मीन्स दैट द प्राइस ऑफ दिस शेयर इज डिक्लाइनिंग. ओके, रेड मीन्स दैट द प्राइस इज डिक्लाइनिंग. अभी के लिए चार्ट पे ज़्यादा ध्यान मत दो, जैसी की रेड है विच जस्ट सपोर्ट्स द पॉइंट जो हमने ऊपर देखा कि एरो नीचे की तरफ है. ओके, नाउ वी गो डाउन. वी आर रीडिंग द ओवरव्यू टुडे, राइट, द ओवरव्यू सेक्शन. ओवरव्यू सेक्शन में सबसे पहले आता है बिड क्वांटिटी एंड आस्क क्वांटिटी. This I am not gonna cover in this video. I have made a separate video on just bid and ask quantity for next week. क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा टर्म्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा डिटेल में. लाइक आई जस्ट डोंट वांट टू गिव यू अ डेफिनेशन एंड लेट इट गो, एंड इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा. सो नेक्स्ट वीक वी विल टॉक अबाउट दैट इन प्रॉपर डिटेल. अभी के लिए फ्रैंकली अगर आपको नहीं भी पता, इट इज ओके, इट इज नॉट समथिंग दैट यू नीड टू नो इमीडिएटली, बट रिमेंबर वी आर गोना डू दैट नेक्स्ट वीक. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, subscribe the channel right now. Okay, बिल्कुल उसके नीचे आता है open price. That means today as of 21st March, that is when I'm making the video, in the morning जब मार्केट खुला था, जब शेयर मार्केट खुला था, तब हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्राइस था 2515 रुपीज़. उस प्राइस पे ओपन हुआ था. दैट वाज द ओपनिंग प्राइस जो हम बोलते हैं. नेक्स्ट बिल्कुल उसके नीचे आप देखोगे, इट इज़ कॉल्ड वी हैव प्रीवियस क्लोज दैट शोज 2511.20 रुपीज़. प्रीवियस क्लोज मतलब कल मंडे को जब मार्केट बंद हुआ था, जब सारे ट्रांजैक्शन सेटल हुए थे, तब हिंदुस्तान यूनिलीवर का क्या प्राइस था एट दैट टाइम. द मार्केट व्हेन द मार्केट क्लोज येस्टरडे, हिंदुस्तान यूनिलीवर वाज एट 2511.20. अब फन फैक्ट, आप बोलोगे कि कल जिस प्राइस पे खुला आज उसी प्राइस पे क्यों नहीं कल जिस प्राइस पे बंद हुआ था आज उसी प्राइस पे क्यों नहीं खोला? इट शुड बी द सेम, राइट? बीच में थोड़ी कुछ होता है. नाउ येस, बहुत टाइम्स ऐसे होता है दैट द प्रीवियस क्लोज एंड द ओपनिंग प्राइस इज सेम और सिमिलर, बट मोर देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर इज अ स्लाइट फ्लक्चुएशन. अब आप बोलोगे क्यों? ट्रेडिंग तो नहीं होती. यू आर राइट, ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी द शेयर प्राइस डज फ्लक्चुएट. कभी मार्केट में कोई न्यूज़ आती है, कोई, it might not even be related just to HUL, it might be related to something else that will affect HUL. कोई न्यूज़ आती है, कोई स्पेकुलेशंस होते हैं, इवन आफ्टर द मार्केट क्लोजेस दीज थिंग्स हैपन, जिसके वजह से वो शेयर प्राइस पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होना लगता है. सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द प्रीवियस क्लोज एंड द ओपनिंग प्राइस विल बी द सेम. काफ़ी चांसेस हैं कि ये दोनों प्राइजेस में एक स्लाइट फ्लक्चुएशन होगा. अगेन वाई? बिकॉज ऑफ data that is released post the market closes, or speculations that are made post the market closes. अगर बहुत सारे लोग सडनली मार्केट में ऐसे बोलेंगे कि यार HUL शायद इतना अच्छा नहीं है, तो जब HUL खुलेगा तो यू एज अ बायर वुड नॉट वांट टू बाय इट एट अ वेरी हायर प्राइस. तो मार्केट उस सेंटिमेंट को ऑलरेडी कैप्चर कर लेती है. दैट इज वाई प्रीवियस क्लोज एंड ओपनिंग प्राइस इज नॉट नेसेसरली ऑलवेज द सेम. नहीं तो एक ही टर्म होता है ना, इसलिए दो अलग अलग टर्म्स हैं. सो कीप दैट इन माइंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो वी कैन सी डेली रेंज. अब डेली रेंज में आप देखोगे एक बार बना है विद अ रेड एल एंड अ ग्रीन एच. डेली रेंज मतलब आज के दिन पे 21st मार्च जो मार्केट ट्रेडिंग टाइम था, दैट इज फ्रॉम 9 AM to 3 PM, दिस स्टॉक HUL का स्टॉक सबसे ज़्यादा किस प्राइस पे पहुंचा? इट हैज़ टच 2523.25, मतलब वो उसका हाईएस्ट प्राइस था फॉर टुडे. इट ट्रेडेड टिल 2523.25, लाइक उस प्राइस तक वो गया, उस प्राइस पे एक ट्रेड गया है, राइट? सो दैट इज द हाईएस्ट प्राइस एट विच HUL ट्रेडेड टुडे, ओनली टुडे. ओके, एंड द लोएस्ट एट विच इट ट्रेडेड, द एल रेड इंडिकेट्स लो, इज 2458.75. आज के दिन में HUL का स्टॉक उतना गिर गया, लाइक वो उसका फ्लो था, उससे ज़्यादा नहीं गया पर उतना तो गिर गया. सो दैट इज आज का रेंज. आज के दिन में HUL का स्टॉक कितना सबसे ज़्यादा ऊपर गया, कितना ज़्यादा नीचे गया, दैट इज डेली रेंज. अगेन डेली रेंज, 52 वीक रेंज हम नेक्स्ट समझेंगे, इज
extremely important if you want to do short term captures, short term profits, इंट्राडे मतलब एक ही दिन में खरीदना और बेचना, उसके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है ये डेली रेंजेस को और 52 वीक 52 हाई रेंजेस को समझना कि क्या होता है और कैसे उनको एनालाइज करते हैं. एनालाइज कैसे करते हैं हम बाद में जानेंगे, अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड द टर्म्स. Next we have 52 week range. 52 week range, again there's a low and high. Now 52 week range means from 21st March 2022 till 21st March 2023, exactly 1 year के exactly 1 year का duration में HUL का stock has reached a point of the highest that it has hit is a 2741.60 and the lowest it has gone in the year is 1931.30. 1 year. Mind you, even 1 year stocks are considered as short-term captures. It's not considered as intraday, but it's considered as a short-term capture. So again, this is very important. आप ये एक ईयर के एनालिसिस के हिसाब से लगा सकते हो कि यार अगर एक साल में ऐसे हुआ है, इस साल में क्या क्या रेगुलेशंस आए हैं मार्केट में, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या स्पेकुलेशंस आए हैं, उस बेसिस पे क्या अगले साल भी ये स्टॉक उस लेवल पे जाएगा, इतना गिरेगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट, राइट. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड. ये सब टर्म्स देखने में बहुत सिंपल लगते हैं मे बी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट. बिल्कुल उसके नीचे आता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, VWAP. अगेन उसको हम आज कवर नहीं करेंगे बिकॉज इट विल गेट अ लिटिल टू टेक्निकल एंड आई डू नॉट वांट दैट फॉर यू. फॉर टुडेज वीडियो आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक इंटरफेस कि अगर आप मनी कंट्रोल ऐप खोलो, कोई स्टॉक के बारे में पढ़ो, तो ये सबसे पहला इंटरफेस आता है. इतना भी आप जानोगे तो आप एक बेसिक ट्रेड डाल सकते हो. मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर तो ऑलरेडी आपको पता है, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देखो, राइट. अब लास्ट वीक के पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए मैं एक फन फैक्ट दिखाऊंगी. अगर आप देखोगे ये पेज मैंने जो आपको दिखाया है, दिस प्राइस इज 2462.60 इज ट्रेडिंग ऑन द NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट. अब अगर मैं इसको चेंज करूँ, विच बाय द वे मनी कंट्रोल गिव्स यू द फीचर, ऑल ट्रेडिंग एप्स लेट यू सी बोथ प्राइजेस, को मैं BSE में डालूँ तो देखो प्राइस अलग आ रहा है 2463.20, राइट. मैंने लास्ट वीक ही कहा था वन सेम शेयर HUL का ही शेयर है, लेकिन दो अलग अलग मार्केट पे अलग अलग प्राइस पे बिक रहा है. फन फैक्ट को प्रूव किया है बस, और कुछ नहीं. So yes guys, that was it for today. I know this was not something very rocket science, maybe a lot of you would understand it very very easily and that's good, but हम अक्सर भूल जाते हैं कि to understand the technical things you need to walk through the basics first. Next week, like I said, we are going to talk about the bid and ask quantity. उसके following week में I'm going to discuss about circuits, which is very 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 interesting. Upper circuit, lower circuit, even bid and ask quantity बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स हैं. वो हम जाते हैं थोड़ा सा टेक्निकल साइड की तरफ. सो नेक्स्ट वीक का वीडियो तो बिल्कुल ही मिस मत करना. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो इज़ नेसेसरी. सो प्लीज़ डू इट. I will see you guys next Tuesday. Until then, keep sparkling and definitely keep learning.